Exploration of forces. Forces applied on an object in the same direction add up. If two forces act in opposite direction on an object, when two people work on a rope, the net force acting on it is equal to the difference between the two forces. For example, when two people pull equally on a rope, the rope does not move in any direction. As a result, one force may be greater, smaller, or equal to other. The magnitude of a force is usually used to express its strength. This is a rule to specify the direction of a force. Moreover, if the direction or magnitude of the applied force changes, its effect also changes. बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डब्बे को धक्का देने से उसकी चाल बढ़ जाएगी। जब वस्तु पर चाल की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। जब बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। जब वस्तु की बल विपरीत दिशा में है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, गति करते हुए डिब्बे को खींचने से उसकी गति कम हो जाएगी। किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाला परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह सामान्य अनुभव है कि बल लगाने पर हमेशा गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। बल लगाने पर हमेशा गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम पर लगाए जाने पर भी गति ना करे। एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। Force can change the state of a motion of an object. The speed of an object can be changed by the force applied to it. When the force applied to an object is in the direction of motion, the speed of the object increases. For example, pushing a box will increase its speed when a force is applied on an object in the opposite direction to the direction of motion. The speed of the object decreases. For example, pulling a moving box will decrease its speed. Any change in the speed of an object or its direction of motion or both is expressed by a change in its state of motion. Hence, the state of motion of an object can be changed by force. It is common experience that applying force does not always change the state of motion. A heavy box may not move even if you apply maximum force. Similarly, if you try to push a wall, you will not see any effect of force on it. गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। State of motion. The state of motion of an object is described by its speed and direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object can be at rest or in motion. Both are its states of motion. बल किसी वस्तु की आकृति
में परिवर्तन कर सकता है। जब कोई गुब्बारा फुलाया जाता है तो इसकी आकृति बदल जाती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। Force can change the shape of an object. When a balloon is inflated, its shape changes. Thus, it can be seen that by applying force on an object, its shape can change. एक बल का परिणाम होता है किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाना। जब विराम अवस्था से गति में लाई जाती है तो बल लगता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हो सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। The resultant forces can bring an object from rest to motion, can change the speed of a moving object, can change the direction of a moving object, can change the shape of the object, can produce some or all of these effects. Although force can cause one or more of these effects, none of these effects can occur without the application of force. संपर्क बल, पेशीय बल, मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल के रूप में जाना जाता है। यह पेशीय बल है जो हमें अपने शरीर को हिलाने, मोड़ने से जुड़ी सभी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों, अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। Contact force, muscular force. The force exerted by the action of muscles is known as muscular force. It is the muscular force that enables us to perform all activities involving moving or bending our bodies. Animals also use muscular force to perform their physical activities and other works. Animals like bulls, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. They use muscular force to perform these tasks. घर्षण, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं, ये भी धीरे धीरे धीमी होती है, अंत में रुक जाती है। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल है। फर्श और गेंद की सतह के बीच घर्षण के कारण चलती हुई गेंद रुक जाती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह संपर्क बल का एक उदाहरण है। Friction. A ball rolling on the floor gradually slows down and finally stops. When we stop pedaling while riding a bicycle, it also gradually slows down and finally stops. In all these situations, no force appears to be applied on the objects, yet their speed gradually decreases. This keeps happening and finally they come to a resting state. In all these examples, the change in the state of motion of the object is due to the friction force. The moving ball comes to a stop due to friction between the surface of the ball and the floor. Friction force is applied on all moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. Since friction force is generated due to contact between two surfaces, it is also
An example of contact force. असंपर्क बल, चुंबकीय बल। संपर्क बल पेशीय बल, असंपर्क बल चुंबकीय बल। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण को एक प्रकार का खिंचाव या धक्का के रूप में देखा जा सकता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। Non-contact force. Magnetic force. The like poles of two magnets repel each other while the opposite poles attract each other. Attraction of repulsion between objects can be thought of as a kind of pull or push. A magnet can exert a force on another magnet without coming in contact. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। Static electric force. The force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is called electrostatic force. This force acts even when the objects are not in contact. Therefore, electrostatic force is another example of non-contact force. गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक शक्तिशाली बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल है। Gravitational force. Objects fall toward the earth because it attracts them towards itself. The force is called gravity. It is called force or simplified gravity. It is a powerful force. Gravitational force acts on every object. Gravitational force acts on all of us all the time without our knowledge. As soon as we open a tap, water starts flowing towards the earth. गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे छोटी हों बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। Gravity is not just a property of the earth. In fact, all objects in the world, whether small or big, exert force on each other. This force is called gravitational force. दाब। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है।
इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कम होता है। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल शीर्ष की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। The force is applied per unit area of a surface is called pressure. Pressure equal force upon area. The above expression the area is in the denominator. So if the forces are equal, then the smaller the area of surface is, the greater will be the pressure on it. The area of a pointed end of a nail is much less than of its head. Therefore, the same force produces enough pressure to hammer the pointed end of the nail into a wooden plank. वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दाब को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इसके बेलन में वायु लगने पर गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जब सक्शन कप को दबाते हैं तो कप और पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। सक्शन कप पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। Atmospheric pressure. We know that there is air all around us. This layer of air is called atmosphere. Atmospheric air extends several kilometers above the surface of Earth. The pressure exerted by air is called atmospheric pressure. Pressure is defined as the force applied per unit area. If we assume a long cylinder filled with air is on another filled with air is standing on top of it, then the gravitational force acting on the air in this cylinder will be equal to the atmospheric pressure. When the suction cup is pressed, तो कप और पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। सक्शन कप पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। सक्शन कप को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। एक 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। When the suction cup is pressed, most of the air between the cup and the surface comes out. Between the cup and surface comes out, atmospheric pressure is applied on the suction cup and hence it sticks to the surface. The force applied to pull the suction cup away from the surface must be great enough to overcome atmospheric pressure. The force due to air in the column of area 15 cm into 15 cm and height equal to the height of the atmosphere is equal to the gravitational force 2250 N acting on the 2500 न्यूटन। एन की वैल्यू न्यूटन होती है। एक्टिंग on a body of mass about 225 kg. The reason why we don't get
crushed under this gravitational force is that the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and it balances the outside pressure. बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तु में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। एक ही दिशा में किसी वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। किसी वस्तु की चाल की अवस्था को उसकी चाल और गति की दिशा से वर्णित किया जाता है। ऑप्शन सी, तीनों सही हैं। तो अब इसमें हमें क्या बताना है कि जो फोर्स के रेफरेंस में जो स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है कि कौन से इन तीनों ऑप्शंस में से कौन से सही है। तो क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी पढ़ लेते हैं, फोर्स टू बी अप्लाइड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट। किसी भी फोर्स को लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट तो जरूरी इंटरेक्ट होने चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई इंटरेक्ट ही नहीं होगा हमसे, अगर मान लो कि हमें किसी चीज़ पे फोर्स लगाना है तो वो चीज़ भी तो होनी चाहिए, तो इंटरेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर आउट। तो अब क्या है कि अगर हम दीवार को फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, वो उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि हमसे तो वो दीवार टूटेगी नहीं, चाहे अब 6-7 बंदे आ जाए, चाहे 8-10 बंदे आ जाए, तो वो हमसे तो दीवार खिसकेगी नहीं। तो ये क्या है, उसको कट आउट कर देगा, मतलब कि उसको रद्द कर देगा। फिर आता है कि द स्टेट ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किससे डिस्क्राइब किया जाता है, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब जैसे कोई भी मोशन चल रहा है तो हम उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन भी। अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड, अगर वो धीरे चल रहा है तो तेज भी चलने लग सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑल द 3। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बल द्वारा किया जा सकता है? आंसर 1, 2, 3 एंड डी, तीनों ही इसके आंसर हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी चाल बदलना, किसी वस्तु की गति की दिशा बदलना, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाना। जब हम कोई कार्य करते, कौन सा कार्य बल द्वारा किया जा सकता है? ये सारे कार्य हम बल द्वारा किए जा सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की चाल को बदल सकते हैं। बल के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर ए, स्थिर वैद्युत बल गतिमान गेंद को विराम की अवस्था में लाता है। स्थिर वैद्युत बल गतिमान गेंद को विराम अवस्था में नहीं लाता। घर्षण बल जो चलती हुई गेंद को विराम अवस्था में लाता है। और स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। वस्तु के संपर्क में न होने पर यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। अस्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। पेशीय बल एक प्रकार का संपर्क बल है, ठीक है। ये घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, ये भी सही है। घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, हमारा घर्षण बल होता है, वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमारा और सड़क का। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो धरती की ओर अट्रैक्ट होती है। अगर ऊपर से कोई चीज़ है तो वो धरती की ओर अट्रैक्ट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है।